अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. And as I have told everyone that I'll upload the new story very soon, so that's why my new session of the videos is going to be start from today, from now. As you all can see, the name of the story is very clear in the screen. As we all are aware from this story, this is like our childhood story. We have read it in our matriculation examination. That is really very interesting story, and in our matriculation examination it is elaborated very deeply, but in this booklet it is given very shortly. Okay, no suspense element is described, and very shortly it is given, and the author is old, like author is R.K. Narayan, as we all are aware. So first thing I would like to say to everyone, every student who is going to prepare for their examination, just remember the date. Okay, if you are going to describe autobiographic information, then give the demise date and the birth date. And if you are going to elaborate any story, then try to give the publication date and written date, in which era it was written. So I would like to interrupt in between that astrologer's day. The first line is seeing here on the screen that astrologer's day was written in 1943, not in 47. This date is about engine trouble. Okay, so let's start without any further delay. That was the small tip. I just remind everyone about the date, and because students, when they give answer, when they make note, then they usually they forget, and date is really very tough to keep in their mind. There are a lots of stories, and there are a lots of dates, many more dates, so it's very difficult to keep in your mind. Okay, so let's start. 2.4 Engine Trouble. Engine Trouble is taken from the collection An Astrologer's Day 1947. Always remember this line, that a particular story in which collection it is taken, it is extracted, and the date. Okay, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे 1947. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का ये डेट नहीं है. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे लिखा गया 1943 में, और ये एंजन ट्रबल 1947 का है, इस कलेक्शन में लिया गया था. ठीक है. अ मैन ड्रॉज अ लॉटरी टिकट एट अ फेयर विनिंग अ रोड इंजन. एक इंसान है, एक आदमी है जो मैं यहाँ पे बीच में थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ कि वो पहले से ही काफ़ी परेशान होता है, उसके ऊपर सारे कर्जे होते हैं खूब सारे, और वो यूं ही मेले में जाता है, और मेले में जाते हुए उससे जो है एक टिकट मिल जाती है, वो एक लॉटरी जीत जाता है, जिस लॉटरी में उसे एक रोड इंजन मिलता है. At first he is delighted, thinking that he has made a fortune, but with each passing day the engine proves to be a useless burden, costing money to occupy space and to move. पहले तो वो ये सोचते हैं जनाब कि भाई बहुत किस्मत बन गई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी हो जाती है उन्हें, और हर गुजरते हुए दिन के बाद फिर उन्हें ये महसूस होता है, इंजन ट्रबल खुद को, ये इंजन जो है खुद को ये प्रूव करता है कि वो एक यूज़लेस सी चीज़ है, एक बोझ है, बर्डन है, बल्कि वो यही नहीं पैसे के और भी खर्च करने का एक ज़रिया बन जाता है. ठीक है. और उसे हिलाने के लिए, इधर से उधर करने के लिए उसे और पैसे खर्च करने पड़ते हैं. हालांकि ऑल्दो ही इज़ ही इज़ इन डेट ऑलमोस्ट, just as the owner is deciding to leave everything and flew from Malgudi, an earthquake occurred, shifting the road engine into a disused well belongings to his creditors. और जैसे ही इस तरह से सोचता है वो ओनर जो है, वो फैसला लेता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, इतना वो ज़्यादा घबरा जाता है. when you will read this story deeply word by word, and then you will realize that how much this is interesting. This is interesting story. Your interest will cures itself, and your will wants to read it. Okay, so this is interesting story, I must say. वो फैसला लेता है कि वो यहाँ से छोड़ के सब कुछ भाग जाए. इतना ज़्यादा उसे परेशानी हो जाती है, उसे हाथियों को बुलाना पड़ता है इसे हिलाने के लिए, फिर लोग जमा हो जाते हैं, फिर बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, और वो ये फैसला करता है कि जो है वो यहाँ से चला जाए. मालगुडी जो एक पर्टिकुलर प्लेस आर के नारायण की कहानियों में मिलता है. मालगुडी खुद भी एक कहानी है,
कहानियों का कलेक्शन है, उस जगह का नाम यहाँ पे लेंगे कि वो इस जगह को छोड़ के किसी तरह चला जाए। और इतने में क्या कर होता है कि एक जलजला सा आता है, क्या करने में, जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं इंजन को कहाँ पे, गैर इस्तेमाल शुदा एक जो कर्ज जिसका वो कर्ज लिया हुआ होता है उसके कुएं के ऊपर वो ले जा करके उस इंजन को रख देता है, और वो इंजन उस कुएं के ऊपर इस तरीके से फिट हो जाता है जैसे कॉर्क फिट हो जाता है। द इंजन फिट्स द वेल लाइक अ कॉर्क एंड एवरी वन इज़ डिलाइटेड, और बाकी सब सारे लोग खुश हो जाते हैं। एंड द सेकेंड पैराग्राफ इज बोथ द थीम एंड प्लॉट आर वेरी सिंपल हेयर। द रोड इंजन, अ heavy inanimate object, attaches itself to the man and influences his living, his human individuality until the balance is restored in the end. ओके, ये लाइन काफ़ी लंबी हो गई एंड आई डिड नॉट स्टॉप इन बिटवीन। दोनों ही जो हैं वो थीम और प्लॉट जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे थीम और प्लॉट को सिंपल रखते हुए इस कहानी को इतनी इंटरेस्टिंगली लिखा गया है, छोटी छोटी हादसे को, छोटी छोटी बातों को इस तरीके से एलाबोरेट किया गया है कि पढ़ने वाले का, मैंने जैसे पहले बताया कि इंटरेस्ट इटसेल्फ रेज्ड, ओके, वो खुद ही रेज होता है और पढ़ने का दिल चाहता है। तो रोड इंजन जो है वो बेजान सी एक चीज़ है और वो ख़ुद को इस तरीके से एक इंसान से अटैच करती है, उसकी ज़िंदगी पर असर डालती है, और उसकी इनफरादी जो एक इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी होती है एक अकेले वाहिद इंसान की, उसको वो किस तरीके से बैलेंस में लाती है, और बैलेंस जो है रिस्टोर होता है एट द एंड में, उसकी ज़िंदगी पे असर डालती है। वो एक बेजान सी चीज़ है, भारी सी चीज़ है, बोझ है, बर्डन है, यूज़लेस है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी को किस तरीके से असरअंदाज करती है, इफ़ेक्ट डालती है उसके ऊपर, इन्फ्लुएंस करती है, और वो करते हुए उसके जो बैलेंस है वो एंड में रिस्टोर होता है। देयर इज़ अ फर्म स्टोरी लाइन एंड द मूवमेंट इज़ सर्कुलर। एक फर्म सोची समझी एक कहानी है और इसकी मूवमेंट जो है गोल घूमती हुई है, सर्कुलर है, कहानी एक दूसरे को ज्वाइन करती हुई है। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ मैं यहीं पे एलाबोरेट करके छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। कहानी का 4 पैराग्राफ में जो है ये रहे 4 पैराग्राफ, और उसके बाद एटमॉस्फेयर शुरू हो जाएगी, कहानी के एटमॉस्फेयर का यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आई विल इंशाल्लाह ताला अपलोड वेरी सून all these videos, okay, and I hope I have elaborated very nicely. If I am lacking somewhere, then come to comment section, tell me, and don't forget to subscribe, like, and always give your comments, ask questions, and always remember question must be relatively.